Good morning, students. Today we will be starting up with the second chapter of Flamingo, that is Lost Spring. Lost Spring is written by Ernest Jung. Ernest Jung जो है, she studied in India as well as in USA, and she actually became a writer in our country, India itself. She has been an editor and a columnist in the major newspapers in India and as well as abroad. And she has authored many books and newspapers too. बहुत versatile writer हैं और बहुत कुछ लिखती हैं. Her book Lost Spring, Stories of the Stolen Childhood, that focuses on the children from deprived background, जो कि उस वक्त इंडिया में था. तो ये जो हमारे चैप्टर का टाइटल गिवन है, एक्चुअली इट इज़ द टाइटल ऑफ द बुक रिटन बाय हर, स्टोरीज ऑफ चाइल्डहुड, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. अब स्टोलन चाइल्डहुड क्यों बोला गया है? क्योंकि देयर आर पीपल, देयर आर चिल्ड्रन जो कि बहुत सारी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से अपने चाइल्डहुड को एंजॉय नहीं कर पाते हैं. हियर इन दिस चैप्टर ऐसी दो स्टोरीज हैं, दोज विच आर गिवन टू अस. वन इज समटाइम्स आई फाउंड अ रूपी इन अ गार्बेज which is on a boy Sahib Alam, belongs to the slum of Simapuri. And second story is I want to drive a car, where protagonist is Mukesh, who is from Firozabad city. So we will be talking about these two stories in this chapter. Three main characters are there in this chapter. First is our narrator Enija. Second is Sahib Alam, who belongs to Simapuri, and third is a boy Mukesh from Firozabad, the city of bangles. So when we go to the core of the chapter, so हम क्या देखते हैं कि these two excerpts are taken from author's book Last Spring, Stories of Stolen Childhood. Now this chapter is divided into two parts. The continuing the author's first-hand experience with poverty and traditions which are prevailing in some parts of India. The first part, the first character here describes the plight of the poor rag pickers of Simapuri, and the second part describes the miserable condition of the bangle makers of Firozabad. दोनों को बहुत keenly observe करने के बाद narrator had explained here. Now if we talk about these two characters, Sahib Alam and Mukesh. So Sahib Alam कौन है? He is a rag picker from Simapuri near Delhi. Slum area है Simapuri, बहुत बड़ा. He has simple dreams and he believes in promises made to him. वो कैसे? That we will be seeing in story. The second character Mukesh, who is from Firozabad. Mukesh is a boy belonging to a family of bangle makers in Firozabad. His dream of breaking away from traditional bangle making and becoming a motor mechanic attracts us very much. If we talk about a narrator, Ernest Jung, he is a social worker who empathises with the slum dwellers and honestly portrays their pitiable life. बहुत ईमानदारी से उन्होंने इन सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन जो है वो हमको किया है. So first of all, let us begin up with the first one. Sometimes I found a rupee in the garbage. In the beginning of the chapter, we see Sahib
was a rat picker. Now every morning our author meets Sahib and his friends who are scrounging खोज रहे हैं the gold in the garbage dumps of their neighborhood. Now Sahib and his friends, they hails means they are from Bangladesh, but they have left their homes a long ago. क्यों छोड़ा उन्होंने? Storms washed away their fields and homes, reducing them to move out from the place in search of food. So and to come out from the abject deep poverty which they left behind in the hope of finding a better future for them. That is why they came to this city looking for gold. यहाँ बार बार आपको गार्बेज और गोल्ड का जिक्र मिलेगा. गार्बेज और गोल्ड को कैसे कनेक्ट किया हुआ है? गार्बेज ये रैट पिकर्स कलेक्ट कर रहे हैं. गोल्ड इज द मनी विच दे गेट बाय सेलिंग दैट गार्बेज. उसको वो गोल्ड है इनके लिए, गोल्ड वैल्यूएबल है इनके लिए बहुत ज़्यादा. ऑथर जो है हमारा, ही आस्क साहिब आलम दैट व्हाई ही डज रैट पिकिंग एंड डज नॉट गो टू स्कूल. और सिंपल क्वेश्चन जो है वो नरेटर जो है वो पूछती है उनसे कि भाई क्यों रैट पिकिंग करते हो, स्कूल क्यों नहीं जाते? तुम्हारी एज जो है वो तो स्कूल जाने की है, तो तुम क्यों नहीं जाते? To this he replies that there is no school in his neighborhood. अब कहते कैसे जाऊँ भाई, कोई स्कूल ही नहीं है तो. So author जो है he very jokingly promised to open a school. मजाक में कह देता है कि अच्छा चलो अगर मैं ओपन करूँगा स्कूल तो तुम आओगे. और साहिब आलम जो है वो इसको बहुत ही सीरियसली ले लेता है. Now after a few days, Sahib asked the author, has he opened the school? कि भैया स्कूल की बात कर रहे थे, खुल गया क्या तो मैं आ जाऊँ? At that time, the author felt ashamed and regretted for having made a promise that was not meant to be fulfilled. उनको पता था कि कैसे भी ये जो मैं प्रॉमिस इनसे कर रहा हूँ उसको मैं पूरा कर ही नहीं सकता. तो उन्हें दुख होता है इस चीज़ का कि एक ऐसा प्रॉमिस मैंने यहाँ कर दिया जिसको कि मैं कभी भी पूरा कर ही नहीं पाऊँगा. ही रिग्रेट्स फॉर दिस. एंड नेवरदलेस शी रियलाइज दैट सच प्रोमिसेस आर मेड टू दीज चिल्ड्रन ऑलमोस्ट एवरी डे. इसके साथ साथ एक और रियलिटी एक्सप्लेन करती हैं वो कि these children comes from the very much deprived section of society. तो इस तरह के false promises जो हैं वो जनरली इन बच्चों से रोज़ पता नहीं कितनी बार किए जाते हैं. दो she regrets on her part. खुद जो उन्होंने करा है उसका उन्हें बहुत दुख है. Coming further, साहिब आलम जो है उसकी और एनएस जंग की अच्छी खासी दोस्ती जो है वो हो जाती है. निकलते घुसते हुए कभी भी दोनों मिल लेते हैं एक दूसरे से. अब साहिब आलम, आफ्टर अ मंथ ऑफ नोइंग हिम, द ऑथर आस्क साहिब हिज फुल नेम. द ऑथर नोटिसेस दैट आयरनी इन साहिब्स नेम, साहिब आलम. जब उसका नाम पूछती हैं कि क्या नाम है तुम्हारा, तो अपना नाम बताता है साहिब आलम. साहिब आलम का मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. तो कितना बड़ा सटायर है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स कचरा बीन रहे हैं. सो इस आयरनी पर हंसती हैं वो. एंड शी फील्स दैट साहिब वुड नॉट बिलीव व्हाट हिज नेम मीन्स. वो समझ जाती हैं और बोलती भी हैं कि साहिब आलम कभी भी विश्वास ही नहीं करेगा कि उसके नाम का ये मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. खैर, अनअवेयर of the meaning of his name, साहिब जो है he roams with his friends, his gang, barefooted on the road. नंगे पैर अपनी पूरी गैंग के साथ, गैंग here means
वो सारे बच्चे जो रैट पिकिंग करते हैं उनके साथ आराम से घूमते हैं। एंड ऑथर सडनली द ऑथर जो है क्यूरियसली आस्क व्हाई दे वोंट वेयर स्लीपर्स, जनरली स्लीपर्स क्यों नहीं पहनते हैं आप लोग। अब बड़ा डिप्लोमेटिक और डिफरेंट आंसर जो है वो मिलते हैं उनको। वन रिप्लाइज दैट हिज मदर डज नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। ऑथर सेज, ऑथर वाज नॉट सरप्राइज्ड टू सी। अनदर सेज he won't shoes, that is why he is not wearing chappal. One replies he is not comfortable in wearing chappals. तो अपनी बात को जस्टिफाई करने के अलग अलग पॉइंट्स हैं उन सारे बच्चों के पास। अब मूविंग अक्रॉस द कंट्री द ऑथर हैज सीन मेनी चिल्ड्रन वॉकिंग barefoot. One of the explanation is that it is a tradition and not lack of money. अब वैसे हमारे इंडिया में जो है ये ट्रेडिशन भी है कि जो नंगे पैर जो है वो चलते हैं, बेयर फुटेडनेस जो है वो ठीक है, चलते हैं वो लोग ऐसे, और इसी को वो एज अ ट्रेडिशन। अब एनी जंग जो है वो तो इंडिया की नहीं है, वो तो बाहर से है। वो क्या कहती है कि झूठा नाम भी देते हैं कि इट्स अ ट्रेडिशन, बेयरफुट रहने का हमारे यहाँ ट्रेडिशन, इसको नहीं समझ पाती हैं। एक एग्जाम्पल भी स्टोरी के अंदर, एक स्टोरी और दे दी है नरेटर ने कि जब वो अपने किसी पुराना रहने वाला गांव का है, वो अपना जगह छोड़ के आता है और दोबारा जब वो जाता है तो थिंग्स आर वेरी चेंज्ड। When they used to study there in their childhood, people used to go barefooted. In temple, no plastic, nothing. Things are allowed. बहुत सात्विक तरीके से सब जाते थे। अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। जब वो अंदर जाके देखते हैं तो what he found that even the kids, plastic chairs are lying there and पुजारी son, प्रीस्ट का जो बेटा है वो किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए जाके और वहाँ से वापस लौट के आया है। उसकी जो यूनिफॉर्म है ये बता रही है। तो जगह का जो चेंज है, टाइम का जो चेंज है, उसको भी साथ में एक्सप्लेन किया जाता है। हियर ऑथर पेन्ड बाय द फैक्ट दैट रैट पिकर्स आर स्टिल बेयरफुट। दुख होता है हमारे जो ऑथर है एलिजा, उनको इस चीज़ का दुख होता है, तकलीफ होती है। Author remembers a man from Udupi who, as a young boy, would pass a temple where his father was a priest and pray for the pair of shoes. 30 years later, the author visited his town again. अब वहाँ वो क्या देखते हैं? Any notice that the young boy of the priest who arrived panting, थप 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 हाथ मारता हुआ, पैर मारता हुआ आता है, he was wearing shoes. The writer was reminded by the boy who prayed that he should never lose his shoes. The goddess has granted his prayer as most of the young boys there now have a pair of shoes to wear. As against this, the rat pickers in the author's neighborhood still remains barefoot. उन्हें दुख होता है इस चीज़ का कि इन बच्चों के पास अभी भी पैरों में पहनने को कुछ भी नहीं है। Moving further in the chapter, we see that garbage is gold for these rat pickers. The author's acquaintance जान पहचान with the barefoot rat pickers takes her to सीमापुरी। अब क्योंकि इन लोगों की आपस में जान पहचान ज़्यादा बढ़ गई है, मुलाकात हो गई है, रेगुलर ये लोग मिलते रहते हैं, तो इन बच्चों के साथ ही वो सीमापुरी जाती हैं। अब जब वो सीमापुरी पहुंचती हैं तो वो क्या देखती हैं कि सीमापुरी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है सीमापुरी को, दैट सीमापुरी इज़ अ प्लेस। वो क्या कहती हैं कि सीमापुरी जो है इज़ अ place on the outer circuits of Delhi
yet miles away from its metaphorically. कहने को तो बिल्कुल दिल्ली की ख़त्म होते ही है, अभी तो अंदर ही आ गया दिल्ली के, ख़त्म होते ही है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में अभी भी वो दिल्ली से बहुत दूर है ना, दिल्ली से बहुत दूर है। अब दूर किन चीज़ों में है? दूर है एडवांटेजेस में, जो दिल्ली के लोगों को मिलती हैं और बाकी इनको नहीं मिल पाती हैं। कैसे? द प्लेस even doesn't have electricity, the place doesn't have good drinking water facility, drainage system, कुछ नहीं है वहाँ पर। अब कैसा है सीमापुरी? The place is home to 10,000 other shoeless rag pickers like Sahibiana. They all are Bangladeshi refugees who came back in 1971. They live in very poor condition in mud structure with roof of tin and tarpaulin. But they are happy in that. कच्चा पक्का जैसा भी है, उनको लगता है कि एटलीस्ट उनका घर तो है, कम से कम रहने के लिए कच्चा पक्का एक घर तो अवेलेबल है उनको। 2 जून का 2 टाइम का खाना तो उनको अवेलेबल होता है यहाँ पर, तो इसी चीज़ में वो लोग खुश हैं। Now the place has no running water facility, no drainage system. The rag pickers have lived here for the past 30 years. ऐसा नहीं है कि आजकल में आके ही वो यहाँ पे सेटल हुए हैं। लगभग 30 सालों से रैग पिकर्स जो है वो वहाँ ही लगातार रहते चले आ रहे हैं विदाउट बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ। अब some even more without identity, yet they have valid ration cards. Not having an identity does not bother them. अब किसी के पास वोटर आईडी है, 2-4 के पास राशन बन गया है जो कि लोकल पॉलिटिकल लीडर ने अपने फ़ायदे के लिए उनको बनवा दिया, लेकिन इनको कोई दुख नहीं है इस चीज़ का। जिनके पास नहीं भी है, जिनके पास ये आइडेंटिटीज़ नहीं हैं, उन्हें किसी भी तरीके का कोई दुख यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दे प्रिफर टू लिव हेयर रादर देन इन द फील्ड्स एट होम विच गिव देम नो ग्रेन। क्योंकि अगर वो वापस जाते हैं, बांग्लादेश वापस जाते हैं वो, तो बहुत प्रॉब्लम उनके लिए खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ ना तो उनके पास रहने के लिए जगह है अब, और ना वहाँ पर अब इनके लिए इनके फील्ड्स में खाना उगाने के लिए इनके पास कैपेसिटी और पैसा है। तो एटलीस्ट दे आर ईटिंग ब्रेड एंड बटर हेयर, और उसी में वो खुश है। These rag pickers who once lived in the beautiful land of green fields and rivers, अब उनकी हालत क्या हो गई है? Now they are compelled to live here just for the sake of food. पेट भरने के लिए वो लोग यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। Now children are born in them and become partners in survival. वहीं उनके बच्चे भी पैदा हो गए और वही उनके सर्वाइवल का एक पार्ट वो बन गए। मतलब जैसे वो कचरा बीन रहे हैं, वैसे बच्चे भी उनके साथ जो है वो कचरा बीनने लग गए हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और कोई जरिया ही नहीं है सर्वाइवल का रैग पिकिंग के अलावा, तो बच्चे भी उनके साथ रैग पिकिंग के बिजनेस में जुट गए हैं। ओवर द ईयर्स rag picking has become an art because garbage is gold to these rag pickers. अब garbage gold है अलग अलग तरीके से। For elders it is the mean of earning their livelihood, रोटी खाने के जरिए है। On the other hand, हम जब बच्चों के लिए देखते हैं और सोचते हैं तो उन बच्चों के लिए वो गोल्ड क्यों है? बिकॉज स्क्रैचिंग अप द गार्बेज, कभी उन्हें कॉइन मिल जाता है 1 रुपये का, 5 रुपये का, कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता है, उसके लालच में वो करते हैं। अब वो थोड़े से पैसे उनके लिए बहुत सफिशिएंट है, उनके लिए वो पार्टी का सोर्स बन जाते हैं। हाँ, आज तो भैया 10 रुपये का नोट मिल गया, अब पार्टी करेंगे, हैं। तो वो एन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट के
हिसाब से देखते हैं उसको, और जो एल्डर्स हैं उनके उसके लिए वो अपने परिवार को रोजी रोटी देने का एक जरिया है। तो दोनों के लिए अलग अलग मतलब है। सो हियर एनी रियलाइजेस दैट गार्बेज होल्ड्स अ डिफरेंट मीनिंग टू बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। As for parents, it is the source of their livelihood, providing them with food, shelter, and for children, it is wrapped in wonders. So, काफ़ी कुछ एनिस को इनके पास वहाँ जाने से पता चला। One winter morning, the author see साहिब outside the fence gate of the neighborhood club. ऐसे ही वहाँ से गुजरते हुए एक दिन एनी क्या देखती हैं कि जो क्लब है उसके गेट पर साहिब आलम खड़ा है। क्या कर रहा है वो वहाँ खड़ा है? ही इज वॉचिंग अ गेम ऑफ टेनिस। टेनिस इज कंसिडर्ड अ गेम ऑफ रिच एंड प्रॉस्परस पीपल। वो क्यों देख रहा है? साहिब सीम्स टू बी फैसिनेटेड बाय द गेम। He tells the author that sometimes the guard lets him in and then he can ride this way. वो बताता है कि जो गेट कीपर है बहुत अच्छा आदमी है, कभी कभी मुझे अंदर भी जाने देता है, और जब मुझे वो अंदर जाने देता है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, मना नहीं करता है और थोड़ी देर झूला झूल लेता हूँ। The author here notices that साहिब is wearing tennis shoes. बैरफुट रहता तो हमेशा आज टेनिस शूज पहने हुए। साहिब टेल्स हर दैट समवन गेव देम टू हिम। बताता है कि भाई किसी और ने मुझे दे दिए। द फैक्ट वॉज दैट सम रिच बॉय डिस्कार्डेड द शूज बिकॉज देयर वॉज अ होल इन वन ऑफ देम। अब जब ध्यान से एनिस जंग उनको देखती हैं तो क्या पाती हैं कि उन टेनिस शूज़ में छोटा सा छेद है, और इसी वजह से शायद किसी रिच बच्चे ने उसको फेंक दिया और ये जो है ये हमारे साहिब आलम के हाथ लग गए। फॉर साहिब हु हैज़ वॉक्ड हिज होल लाइफ barefoot, इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। टेनिस उसका फेवरेट गेम और टेनिस में उसको शूज़ मिल गए तो वो बड़ा खुश हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ दोनों के बीच में बहुत सारा इंटरेक्शन है, हम देखते हैं कि वो चलता रहता है। कुछ दिन बाद एक बहुत सरप्राइजिंग इंसिडेंट हमारे नरेटर को देखने को मिलता है। वो क्या है? वो देखती है दैट साहिब आलम इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर नाउ। जैसे वन मॉर्निंग द ऑथर सी साहिब ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। सुबह सुबह देखते हैं कि मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है एंड ही इज कैरिंग अ स्टील कैनिस्टर। स्टील की एक डोली है उसके हाथ में। ही इन्फॉर्म्स द ऑथर दैट नाउ ही वर्क्स एट अ टी स्टॉल एंड इज पेड 800 रुपीज़ इन ऑल हिज मील्स। बहुत कुछ चेंज हो गया साहिब आलम की लाइफ में। अब साहिब आलम रैक पिकर नहीं है, अब साहिब आलम जो है वो एक टी स्टॉल पर काम करने लगा है जहाँ पर उसको 800 रुपये मिलते हैं महीने के और उसका तीनों टाइम का खाना। बट ऑथर फील्स दैट साहिब इज नॉट हैप्पी। उसको देखकर उससे बात कर कर ऑथर को ये रियलाइज़ होता है कि साहिब आलम जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्यों नहीं है? हिज फेस हैज़ लॉस्ट इट्स केयरफ्री लुक। वो जो आराम से मस्त मदमस्त घूमने वाला साहिब आलम था वो कहीं खो गया है, ऐसा इसको हमारे ऑथर को लगता है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग। अब वो बड़ा सा प्लास्टिक बैग जो अपने कंधे पर उठाकर घूमा करता था, वो इतना वज़न उसमें उठा लेता था, उससे काफ़ी कम वज़न इस कैनिस्टर में है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि साहिब आलम को ये ज़्यादा भारी लग रहा है उठाने में, है ना? कैसे? क्यों? द बैग वॉज हिज बट द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द ओनर ऑफ द टी स्टॉल एंड दिस इज हाउ साहिब आलम इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। क्योंकि पहले
साहिब आलम वॉज एन इंडिपेंडेंट मैन, जहाँ मन करता था घूमता था, जब मन करता था, जब रैक पे करता, ही वॉज हिज ओन मास्टर, देयर वॉज नोबडी टू कंट्रोल हिम। लेकिन अभी क्या है, अभी उसको कंट्रोल करने के लिए कौन आ गया है, उसका सुपरवाइज़र, जिसके अंडर में वो काम करता है। तो अभी साहिब आलम जो है खुद अपना मास्टर नहीं रहा है, अपना ओनर नहीं रहा है, किसी और के अंडर में जो है उसको काम करना पड़ रहा है, जिस बात के लिए साहिब आलम बहुत दुखी है। और उसका वो जो दुख है, उसकी वो जो तकलीफ़ है, वो नज़र आ रही है एलिस जंग को बिल्कुल क्लियरली। सो दिस वॉज ऑल अबाउट समटाइम्स आई फाउंड अ रूपी इन द गार्बेज। नाउ वी प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। वो क्या है, I want to drive a car. As I have told you, this is the story of a boy Mukesh. फिरोज़ाबाद का है, फिरोज़ाबाद का रहने वाला है और बेसिकली बैंगल मेकिंग फैमिली को बिलोंग करता है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, इन फिरोज़ाबाद द ऑथर मीट मुकेश। अब मुकेश है वो इंसिस्टेड ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। यहाँ मुकेश भी वही है, जो जिस्ट ज़ील वी हैव सीन इन साहिब आलम, द सेम वी फाउंड इन मुकेश हियर। अब वो क्या है, ही विशेस टू बी अ मोटर मैकेनिक। हालांकि ही बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, लेकिन वो खुद एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और ये बातें वो एलिस जंग को बताता भी है। He wishes to be a motor mechanic. When Annie asks him if he knows anything about cars, Mukesh replies that he wants to learn to drive a car. तो जब वो अपनी इच्छा बताता है तो एनी उससे पूछती हैं कि तुम जानते हो, गाड़ी के बारे में कुछ जानते हो? तो पता चलता है कि भाई अभी तो मुकेश को गाड़ी चलाना ही नहीं आता है। The author feels that his dream is like a mirage amidst the dusty streets of Firozabad. एनी को कहीं ना कहीं लगता है कि ये ऐसा ड्रीम है जिसको अचीव करना बहुत ही मुश्किल है इसके लिए, मुकेश के लिए। When proceeding further in the story, हम देखते हैं that every second family in Firozabad is engaged in the business of bangle industry, where generations after generations have been involved in this business. अब क्या है उसमें, लगातार एक के बाद एक जो है ये जनरेशन टू जनरेशन उस बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में ही इन्वॉल्व रहते हैं लोग। कुछ अलग या कुछ डिफरेंट करने के बारे में कभी भी नहीं सोचते हैं। लेकिन वहाँ हमारा जो मुकेश है, he dares to dream big. So the people of Firozabad, they even involve their children in bangle making industry without knowing that it is illegal for children to work in glass furnaces इनकी जो भट्टियाँ होती हैं, with high temperature and डिंगी गंदे से, जहाँ हवा कुछ नहीं आती, वहाँ ऐसी जगह पर इन बच्चों का काम करना लीगली वैलिड नहीं है। ये चीज़ जाने बिना इनके जो पेरेंट्स हैं वो इनको इस इंडस्ट्री में झोंक देते हैं, क्योंकि वर्किंग कंडीशंस इन बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज आर वेरी बैड, बहुत बेकार है। अंधेरे में काम करते हैं लोग, लाइट बहुत कम होती है क्योंकि चमक नहीं दिखाई देती ना चूड़ियों की फिर, और इनकी जो भट्टियाँ होती हैं वो बहुत गर्म होती हैं, और व्हेन दे पॉलिश दोज बेंगल्स, तो बारीक कांच का जो चूड़ा है उससे इनकी जो आई साइट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत जल्दी दे लूज देयर आई साइट। तो मतलब बहुत अनइवन सर्कमस्टेंसेस में ये लोग काम करते हैं।
अब इफ़ वी टॉक अबाउट लॉ, लॉ तो बना हुआ है, लेकिन कोई भी उस लॉ को मानने और उसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए तैयार नहीं है, ये हम देखते हैं। इफ़ द लॉ इज एनफोर्स्ड, वहाँ पर तो क्या देखते हैं, ऑलमोस्ट 20,000 चिल्ड्रन वुड बी आउट ऑफ द हॉट सन फेसेस वेयर दे वर्क डे एंड नाइट, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। लगभग 20,000 बच्चे, तो 2-4 भी नहीं है, ऐसा नहीं है 2-4 फैमिलीज ही हैं, 20,000 ऐसे बच्चे निकलेंगे जो कि इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में वहाँ पर काम कर रहे हैं। Mukesh very proudly announces that his house is being rebuilt and volunteered to take the author home. अब वहाँ पर मुकेश बहुत प्राउडली बताता है कि आप मेरे घर चलिए भाई, मेरा तो नया बना हुआ घर है। So they walk down stinking lanes choked with garbage, part houses, है ना, they smell very dirty, construction is very bad. At times some houses have only doors, no windows are there. वहाँ पर and even condition is so bad that families of human and animals they coexist in a private state. एक ही घर में एक ही दरवाजे के अंदर जानवर भी रह रहे हैं, ह्यूमन बीइंग भी रह रहे हैं, मतलब लिविंग कंडीशन जो है वो बहुत बेकार है। सो दे एंटर हाफ बिल्ड, आधे से बने हुए मकान में वो एंटर करते हैं। वन पार्ट ऑफ विच इज थैच, थैच मीन्स भरा हुआ है विद डेड ग्रास, एंड वेयर अ फेयर यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अगर हम देखते हैं, एक तरफ तो पूरा भूसा बोलते हैं जिसको, वो भरा हुआ है, और एक तरफ बड़ी यंग सी दिखने वाली लड़की है जो कि शाम का खाना बना रही है सबके लिए। वो कौन है? शी इज वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, उसके बड़े भाई की वाइफ है। दो नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज द रिस्पेक्ट ऑफ अ बहू। शी वेल्स हर फेस व्हेन मुकेश फादर एंटर्स, फेस मीन्स घूंघट ओढ़ लेती है। बहुत छोटी एज है उसकी, इतनी कम एज में एक तो बेचारी की शादी हो गई है, ऊपर से सारी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो भी उसके ऊपर आ गई हैं, और इतनी समझदारी उसमें आ गई है कि द ट्रेडिशंस कल्चर जो फैमिली के हैं उनको पूरा करना उसको आ गया है। तो जैसे ही वो देखती है कि मुकेश के फादर अंदर एंटर कर रहे हैं, ऐसे ही शी कवर्स हर फेस। यहाँ हम देखते हैं मुकेश फादर हैज टॉयल्ड हार्ड ऑल हिज लाइफ। टॉयल्ड हार्ड मीन्स बहुत मेहनत की है उन्होंने पूरी जिंदगी। फर्स्ट एज अ टेलर एंड देन एज अ बैंगल मेकर। उन्होंने भी कोशिश करी कि इन सब चीज़ों से वो बाहर निकल जाएं, लेकिन ही रिमेन्स अ फेलियर। सो एज अ टेलर अपना भाग्य आजमाने के बाद वो क्या करते हैं, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में ही आ जाते हैं। स्टिल द पुअर फेलो हैज़ बीन अनेबल टू रिनोवेट हिज हाउस और सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल। इतनी कड़ी मेहनत सारी जिंदगी करने के बाद भी बेचारे मुकेश के पापा इतना भी नहीं कर पाए कि अच्छे से अपने घर को रिनोवेट करने या अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज पाए। क्या पता चल रहा है इससे? हियर वी कम टू नो दैट द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स आर वेरी बैड। दो दे स्ट्रगल वेरी हार्ड, है ना, बहुत कड़ी मेहनत वो करते हैं, लेकिन फिर भी दे आर वो सिर्फ अपना ब्रेड एंड बटर अर्न कर पा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। All he could manage to do was to teach them what he knows about the art of bangle making. तो वो क्या कर पाया है अपने बच्चों के लिए? सिर्फ उन्हें ये सिखा पाया है कि बैंगल कैसे बनाए जाते हैं। मुकेश की ग्रैंड मदर भी हैं वहाँ पर। She has seen her husband go blind with the dust from polishing the glass bangles. She believes in destiny. कहते हैं कि can a God given lineage over be broken? अब वो एक्सप्लेन भी करती है कि भैया जो भाग्य में लिख दिया वो तो होगा ही, ये सब लिखा हुआ खेल है, रंभू गतरे। अब उन्होंने ना एक तरह से डेस्टिनी समझ लिया है इसको अपनी,
और इसीलिए जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे समझौता वहाँ पे कर लिया है इन्होंने. Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles, bangles and bangles of various colors. वहाँ कुछ भी और उनको नहीं दिखता है ना. बचपन से बड़े होने तक ना वो स्कूल जाते हैं ना और कुछ, वही बैंगल मेकिंग जो है वो ट्रेडिशनली उनका चला आ रहा है. अब हम और वहाँ क्या देखने को मिलता है एनी जंग को? इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, फ्लिकरिंग धीमे से जो लाइट लैम्प्स हैं, वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ बैठे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, फादर मदर, एंड दे आर वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लासेस इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल. पूरे जगह फिरोजाबाद के पूरे शहर में क्या देखने को मिलता है उन्हें कि छोटे बड़े माँ बाप सब बैठकर सिर्फ बैंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं. अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड. अब लगातार अंधेरे में काम करने की वजह से उनकी आईज पर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है और इस वजह से अंधेरे में तो दिखता है उनको, लेकिन जैसे ही वो बाहर रोशनी में आते हैं ब्लिंक होती हैं उनकी. दे आर नॉट एबल टू फेस सनलाइट एंड दे ऑफन एंड अप losing their eyesight before they become adults. तो 40-45 की एज तक आते आते ऑलमोस्ट सभी जो है आईसाइट लूज कर देते हैं, कुछ पूरी तरह कुछ कम. किसी को बहुत कम दिखाई देता है, किसी को बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है ना. तो इवन कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है उनकी. द ऑथर नोटिसेस अ यंग गर्ल सविता in a drab pink dress sitting beside a elderly woman helping in making bangles. Her hands move like a machine. तब थोड़ा सा आगे जाते हैं जब वो गली में तो वो देखते हैं सविता नाम की एक लड़की उनको मिलती है जो कि फटाफट बैंगल्स बना रही है, मशीन की तरह हाथ चल रहा है उसके. Now Annie wonders if he understand the purity of the bangles for Indian women की इतनी फटाफट जो बना रही है वो इंडियन वुमेन्स के लिए क्या मतलब है इन बैंगल्स का, क्या वो वाकई में उसकी प्योरिटी को ना समझती है. द सैड आयरनी विल सडनली डॉन अपॉन हर. शी विल बिकम अ ब्राइड लाइक द ओल्ड वुमन सिटिंग बिसाइड हर. इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय द ओल्ड लेडी टेल्स द ऑथर that she has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. जब एनी उससे बात करती हैं तो एक बहुत और सरप्राइजिंग फैक्ट जो है वो एनी के सामने आता है. क्या? वो लेडी एनी को बताती हैं पूरी जिंदगी इतना ज़्यादा काम करने के बावजूद आज तक एक टाइम पेट भर के खाना नहीं मिला है उनको. सो हियर वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट अ मिजरेबल लाइफ दीज पीपल आर लिविंग. अब डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ गोइंग अप देयर. इतनी प्रॉब्लम में है, सब कुछ इतना क्रिटिकल है, लेकिन फिर भी उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं देखते हैं, न देखना चाहते हैं न सोचना चाहते हैं. एंड while reading this one wonders if Mukesh's father has achieved what many have failed to achieve in their lifetime. क्या मुकेश के फादर कम से कम एक घर तो बना पाए, बाकी तो वो भी नहीं कर पाए. तो ओवरऑल हम देखते हैं कि कंडीशन जो है उन लोगों की बहुत ज़्यादा ख़राब है. द क्राई फॉर नॉट हैविंग मनी कैन बी हर्ड इन एवरी हाउस ऑफ फिरोजाबाद. ये जो प्रॉब्लम है ये खाली मुकेश के घर की या उसकी गली की नहीं है, पूरे फिरोज़ाबाद में हम देखते हैं इसी तरह की कंडीशन सभी लोगों की है वहाँ पे. नोबडी हैज़ चेंज्ड ओवर द ईयर्स. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी बदलना नहीं चाहता है, कोई भी चीज़ों को चेंज करना नहीं चाहता है. देन विद ईयर्स ऑफ हार्डशिप हैव किल्ड ऑल होप्स एंड ड्रीम्स.
क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत सालों से लगातार करते चले आ रहे हैं, तो एक तरह से कहते दे हैव गिव अप ना, उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी है कि हमारा भी कुछ अच्छा हो सकता है। दैट इज़ वाई ओनली दे हैव स्टॉप ड्रीमिंग। उन्होंने ये सोचना ही छोड़ दिया है कि अगर हम कुछ नया कुछ अलग सोचें तो शायद हम भी इस कंडीशन से बाहर आ सकते हैं।